جو لوگ روحانی مدد کے ذریعے، غیبی مدد کے ذریعے اپنے بڑے سے بڑے قرض کو، پہاڑ جیسے قرض کو راتوں رات اتارنا چاہتے ہیں، جو لوگ پیسوں کی تنگی، پریشانی، مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، جو لوگ دولت مند امیر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی زبردست آزمایا ہوا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ چاہے کوئی کاروباری ہو، چاہے کوئی نوکری والا ہو، چاہے کوئی بے روزگار ہو، سبھی کے لیے یہ برابر فائدہ دے گا، اور اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے اگر کوئی کر لے گیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بڑے سے بڑا قرض چکتا ہو جائے گا، اور اس کی تمام طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور وہ دولت مند امیر ہو جائے گا۔ تو بنے رہیے میرے ساتھ، ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں اس بے مثال زبردست بڑے کام کے وظیفے کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ۔ السلام علیکم، آداب، میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں طلسمی دنیا۔ طلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے طلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ ساتھیوں، قرض کی ادائیگی کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، امیر ہونے کے لیے، پریشانی مصیبت دور کرنے کے لیے میں آپ کو جو عمل بتانے آیا ہوں وہ میں آپ کو بتا کے جاؤں گا۔ وہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بات کو اچھے سے سنیے اور سمجھیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو ایک بہترین جانکاری حاصل ہو، اور جب آپ اس آسان سے عمل کو کریں تو ایک حیرت انگیز رزلٹ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو کامیابی مل جائے۔ ساتھیوں، بات ایسی ہے کہ ان دنوں مجھے قرض کی ادائیگی کے لیے بہت سارے میسج مل رہے ہیں، جس میں یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کچھ بتا دیجئے جس سے راتوں رات 2 3 4 دن میں کچھ بہت ہی جلد میں اپنے قرض کا سامان کر لوں، میرے قرض کی ادائیگی ہو جائے، مجھے روحانی مدد حاصل ہو جائے، غیبی مدد کے ذریعے میں دولت مند امیر ہو جاؤں اور میرا بڑے سے بڑا قرض چکتا ہو جائے۔ تو میں اپنی بات کو یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ راتوں رات 3 دن میں، 5 دن میں بڑے سے بڑے قرض کو چکتا کر سکتے ہیں۔ زمین پھٹ سکتی ہے، خزانہ نکل سکتا ہے۔ آپ مٹی پر دم کریں تو مٹی سونا ہو سکتی ہے۔ موکل حاضر ہو سکتا ہے اور موکل آپ کو آپ کی مانگی ہوئی رقم دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جو قابلیت چاہیے وہ بھی تو آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی زبان آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ ریاضت ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ تقوی ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ پرہیزگاری ہونا چاہیے، آپ کا احکام، عقیدہ اور اخلاق درست ہونا چاہیے، آپ کے پاس شریعت مطہرہ کی سختی سے پابندی ہونی چاہیے، آپ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرب الہی اللہ عز و جل کے طالب ہوں، آپ کو عملیات کی، روحانیت کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو جو اس کے پرہیز ہیں ان کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ جو ہے ریاضت کر کے یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسا ہونا ممکن بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ زمین پر آ کر اپنی قدرت ظاہر نہیں فرماتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے ہی اپنی قدرت ظاہر فرماتا ہے۔ کلام اللہ میں بہت تاثیر ہے اور بہت تاثیر ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات میرا قرض ادا ہو جائے، راتوں رات قرض کی ادائیگی کا سامان ہو جائے، موکل حاضر ہو، زمین پھٹے اور مٹی پہ دم کر دیں تو وہ سونا ہو جائے، تو سورۃ الفاتحہ میں وہ آج بھی اثر موجود ہے کہ مردے پر دم کر دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے جو شرطیں ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ قل هو اللہ شریف میں وہ تاثیر آج بھی موجود ہے کہ اگر آپ 3 بار پڑھ کر مٹی پر دم کر دیں تو وہ سونا ہو جائے، لیکن اس کے لیے جو زبان میں تاثیر چاہیے
वो आपके पास होना ज़रूरी है। जिन लोगों को अहकाम अक़ीदा और अखलाक के बारे में नहीं पता, शरीयत के बारे में नहीं पता, इल्म रूहानियत अमलियात के बारे में, परहेज़गारी तक़वा के बारे में नहीं पता, अगर वो लोग ऐसे अमाल करने की बात करते हैं और इसमें कामयाब होने की बात करते हैं तो ये तो एक मजाक वाली बात हो गई ना। इसलिए अगर आप जो है इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो इनको जानिए, उसके बाद में ऐसे अमल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उसका फ़ैज़ हासिल हो, आपको कामयाबी हासिल हो सके। कोई आम इंसान क्या करे जिसके पास तक़वा परहेज़गारी नहीं है और वो रूहानियत की अमलियात की समझ नहीं रखता है, उसको कैसे कामयाबी मिले, कैसी बरकतें मिले, कैसे वो कामयाब हो जाए कि वो बड़े से बड़े कर्ज़ को चुकता कर ले और दौलतमंद अमीर हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो अमल बताने जा रहा हूँ, अगर कोई बताए हुए तरीके से अच्छे से इस अमल को कर ले गया तो फिर चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो बेरोज़गार हो, बेरोज़गार होगा तो उसे रोज़गार मिलेगा, और अगर कोई कारोबारी है तो उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, और अगर कोई नौकरी वाला है तो वो फलेगा फूलेगा और तरह तरह के रास्ते उसके लिए खुलेंगे, हर तरह के दरवाजे उसके लिए खुलेंगे। और इस तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रूहानी मदद के ज़रिए, गैबी मदद के ज़रिए वो अपने बड़े से बड़े कर्ज़ को, पहाड़ जैसे कर्ज़ को अदा कर लेगा और देखते ही देखते दौलतमंद अमीर हो जाएगा। तो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में जो लोग दिन के हिसाब से अमल करेंगे उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। उनके लिए मैं बताता, अगर जो बातें मैंने आपको बताई अगर वो आप में होती तो मैं ज़रूर बताता। तो उस कंसेप्ट को साइड में रख देते हैं, वो तो होने से रहा। अब जो होने जा रहा है, जो आप कर सकते हैं और जो आजमाया हुआ है, जिससे आपको बेहतरीन फ़ायदा हासिल हो सकता है, जिससे आसानी से आप अपने कंसेप्ट में, अपने काम में कामयाबी पा सकते हैं, वो चीज़ मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। देखें, कर्ज़ का जो बोझ है ना, बड़ा तकलीफ़ देने वाला होता है और कर्ज़ वाले जो है जीने नहीं देते हैं। हर वक्त एक टेंशन बनी होती है, उसकी फ़िक्र लगी रहती है और तरह तरह की जो है धमकियों का, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसों की तंगी है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ से जो है परेशानियां होती हैं। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा, सब्र से काम लेना होगा और सही तदबीर के साथ आप काम करते रहें। आप कारोबारी हैं तो सही से आप अपने कारोबार में हर रणनीति अपनाएं, अच्छे से अपने कारोबार को फैलाएं। बेरोज़गार हैं तो कारोबार की या कामकाज की आप तलाश करें और सही दिशा में मेहनत करें। नौकरी वाले हैं आप तो पेशेंस रखें और ये सब करने के साथ साथ सही तदबीर के साथ सही दिशा में मेहनत करते हुए आप इस अमल को करिए और बताए हुए तरीके से करिए। तरीका ये है कि किसी भी वक्त 24 घंटों में कोई भी एक वक्त निर्धारित कर लीजिए, मुकर्रर कर लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात का, जब भी आप करना चाहें। बहुत ज़्यादा लगेगा तो आधा घंटा लगेगा आपको ये अमल पढ़ने में। करना ये है कि शुरू में और बाद में अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए और 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। दिल की गहराई के साथ पढ़िए, यकीन कामिल से पढ़िए। रब तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दसा पर यकीन कामिल करके पढ़िए। गिनती तादाद पूरा करने के लिए न पढ़िए। अपने काम की मजबूत नियत कर लीजिए। जिस काम में आप कामयाबी चाहते हैं उस नियत से पढ़िए और इस अमल को अपने मामूलात में शामिल कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 1 हफ़्ता, 3 दिन पढ़िए, ऐसा नहीं है। काम होने तक पढ़िए। मेरा तजुर्बा रहा है कि अगर कोई 4 महीने तक भी पढ़ ले गया बताए हुए तरीके से, पाबंदी के साथ, तो वो कोई भी हो, ऐसा ज़रिया सामने आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल असबाब है, वो ज़रिया पैदा करने वाला है। ऐसा ज़रिया पैदा होगा, ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे दरवाज़े खुलेंगे कि जिससे आप देखते ही देखते दौलतमंद अमीर हो जाएंगे। कसरत से आपको खैर व बरकत का हुसूल होगा
और इस तरह से आप अपने बड़े से बड़े कर्ज को चुकाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पे एक नुक्ता आपके हवाले कर दूँ कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे को उसकी औकात के मुताबिक ही अता फरमाता है। यहाँ पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये निज़ाम है कुदरत का। कोई रिक्शा चलाने वाला है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहे तो उसको नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना ही रियाजत क्यों ना कर ले। उसके लिए उसको बहुत सारा वक्त देना होगा, तैयारी करनी होगी और उसको रियाजत भी उसी हिसाब से करनी होगी, तब जाके वो अपने मकसद में कामयाब होगा। इसलिए अगर कोई ये चाहे कि मुझे जो है मैं रातों रात उद्योगपति बन जाऊं, अगले साल मैं उद्योगपति बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो कर्ज है आपके औकात के मुताबिक ही होगा। तो उस हिसाब से ज़रिया पैदा करने की ज़ात जो है वो रब की है। अच्छे से पढ़ना, सही तदबीर करना, सही दिशा में मेहनत करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो ज़रिया पैदा ना हो, बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें आपको हासिल ना हो। बिस्मिल्लाह शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रूहानियत है, जिसके बारे में अगर बात करने लगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। बिस्मिल्लाह शरीफ के बारे में आप सभी जानते ही हैं। तो अगर आप वाकई में परेशान हैं, कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं, आपका पहाड़ जैसा कर्ज़ आप चुकता करना चाहते हैं, रूहानी मदद चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी अदा हो जाए, या आप अपने पैसों की तंगी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, रिज़्क़ की कुशादगी चाहते हैं, तो इस अमल पर आपको अच्छे से अमल करना चाहिए। बताए हुए तरीके से आपको करना चाहिए, सही तदबीर के साथ आपको करना चाहिए। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो लोग ये चाहते हैं कि 2-3 दिन में रातों रात ऐसा हो जाए, तो उनके लिए जो मैंने बातें बताई शुरुआत में उसको वो पूरा करें, उसके बाद में जो है उनके लिए रास्ता निकल जाएगा। और उसके लिए फिर वो जो अमल पढ़ेंगे उसमें तासीर पैदा होगी। और अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस हमारे पास मांगने का सलीका हो जाए, मांगने का तरीका अगर हमें आ गया तो वो कुछ भी अता कर सकता है। वो तो पल भर में भी कुछ भी अदा कर सकता है। वो कौन फयकून का मालिक है, वो कह दे हो जा तो हो जाएगा। कोई भी काम हमारे आपके लिए तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए, रब के लिए कोई भी काम मुश्किल नामुमकिन नहीं है। वो तो पल भर में जो है कुछ भी करने पर कादिर है। तो ये कुछ बेसिक और बुनियादी बातें मैंने कवर करने की कोशिश की है। और कर्ज़ की अदायगी के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, तंगी परेशानी दूर करने के लिए जो अमल मैंने आपको बताया है, ये कोई छोटा मोटा अमल नहीं है। जो इस अमल को करेगा बताए हुए तरीके से काम होने तक या 4 महीने तक, वो समझेगा कि मैंने क्या बताया है। बाकी जो लोग जो है ये सोचेंगे कि क्या है कैसे है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं। जो लोग ये चाहते हैं रातों रात हो जाए और मेरे पास कुछ रियाजत नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं, तो फिर कुछ नहीं। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही जो है लगभग 12-13 मिनट हो गया है। तो अभी मुझे बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी अभी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, डिसलाइक करना ये आपके ऊपर है। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे अमल नक्श के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।